Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video, I will give you my analysis of the current market scenario and also I will talk about one sector which I feel is the best for investing right now. Okay, so I'm on this website where you can track all the sectors, okay, all the indices here. So just if you click on this gaining sectors, so you will get a list of all the sectors which have seen a positive change, okay, over a day, over a week, month, 1 year, 3 year. So you can track the performance of all the sectoral indices here. So if I go to 1 week, okay, and if I analyze which sector has given the most returns, so you can see that there is a sector which is given around 6% returns. So that is metal sector. So close to 7%, okay, metal sector in 1 week. So this is the highest percentage change among all the sectoral indices, right? So even if you see in 1 day, okay, so in the last trading day, metal sector overall was 1.36% up, right? So I believe that in the current market scenario where there is too much volatility and अभी market भी थोड़ा sideways चल रहा है, so I believe metal sector is the one which can give good returns, okay? और अभी अगर हम बात करें in general तो market थोड़ा sideways लग रहा है but relative to all the sectors, okay, relative to all other sectors, this is one sector, metal sector, which is looking good. Okay, so let me open this chart for Nifty Metal. So पहले हम इस सेक्टर का चार्ट देखते हैं, ओवरऑल निफ्टी मेटल का चार्ट कैसा है, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम दिस मेटल सेक्टर जिनमें मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं. ओके, सो let's let's go with the top down approach. पहले we are going to analyze the monthly chart, फिर weekly time frame पे और फिर daily time frame पे. Okay, so this is the right way of technical analysis. जब भी आप किसी इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हो, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, देन फर्स्ट यू शुड चेक मंथली टाइम फ्रेम, देन वीकली एंड देन डेली. ओके, एंड डेली के नीचे फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू कैन चेक hourly or 15-minute chart also. Okay, तो this is the monthly chart for Nifty Metal and you can see यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन था, उसके बाद there is an up trend, okay, on the monthly time frame and यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI is also above 60. So RSI above 60 is bullish and अगर 60-40 के बीच में होता है तो that indicates sideways और 40 के नीचे bearish. So this concept I have explained in my earlier videos also, you can go and check that out. तो monthly time frame पे this is looking good. Then if we go to the weekly time frame, तो weekly time frame पे भी हम देखें कि थोड़ा सा इसको अगर if we see the longer picture, then यहाँ पे एक double top था. Okay, so let me put this line. Okay, this one. सो क्लोज टू दिस प्राइस, ये 3 बार इसने इस प्राइस को टच किया, इस लेवल को टच किया, ठीक है, राइट. सो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम भी ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया. तो यू कैन से दिस इज अ ट्रिपल टॉप रादर. और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बट अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है. ओके, एंड नाउ इट विल लाइकली कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड्स. ओके, एंड यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो, so you can see that RSI is well above 60. तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर तब इसने 60 RSI को भी क्रॉस किया. इफ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, यहाँ पे इसने 60 RSI को क्रॉस किया और यहाँ पे ही इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी इट्स लुकिंग गुड, राइट. एंड देन कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, सो डेली पे भी आप देख सकते हो RSI इज अबव 60 एंड इनफैक्ट RSI ने यहाँ पे 60 लेवल पे सपोर्ट भी लिया है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट गोइंग बिलो दिस 60 लेवल. तो दिस इज ऑल्सो अनदर बुलिश साइन. अगर RSI 60 के ऊपर आता है और फिर 60 पे सपोर्ट लेता है तो दिस इज अ कंफर्मेशन कि इट इज गोइंग टू गो अप. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ये ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है, राइट. एंड इसमें
यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। सो ये 50 EMA की लाइन है, 50 EMA मूविंग एवरेज, और यहाँ पे इसने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट भी लिया। ओके, सो ओवरऑल ट्रेंड इज लुकिंग गुड एंड तीनों RSI 60 के ऊपर है, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम। ओके, एंड उसके अलावा आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। सो लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप वॉल्यूम देखो, सो ग्रीन वॉल्यूम, जो ग्रीन बार्स हैं, दैट इज कंपेरेटिवली हायर देन द रेड बार्स। तो वॉल्यूम भी इंडिकेट करता है कि देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग इन द निफ्टी मेटल सेक्टर ओवरऑल। ओके, तो ये एक ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात हो गई। एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा रैली मेटल सेक्टर में देखने को मिली है। एंड अगर अभी तो मार्केट साइडवेज है, बट अगर मार्केट एक अपवर्ड्स मोमेंटम पकड़ता है, देन दिस इज वन सेक्टर विच इज लाइकली टू परफॉर्म द बेस्ट। ओके, बट यू नीड टू वेट एंड वॉच। एंड निफ्टी थोड़ा अभी साइडवेज हो सकता है। ओके, एंड वोलेटिलिटी भी रह सकती है, बट अगर एक अप ट्रेंड आता है, देन यू शुड कीप अ वॉच ऑन दिस मेटल सेक्टर। ओके, नाउ अगेन आई एम ऑन दिस वेबसाइट niftyindices.com। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच सेक्टर कंस्टिट्यूट्स विच ऑल स्टॉक्स। जैसे मुझे मेटल सेक्टर का देखना है, सो आई विल सिंपली गो टू निफ्टी मेटल एंड आई विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच मेक दिस मेटल सेक्टर। ठीक है, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ दिस मेटल सेक्टर। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो लेट्स एनालाइज अ फ्यू स्टॉक्स। ओके, जो हमारे टॉप गेनर्स में हैं। सो ये आई थिंक डेली परसेंटेज चेंज है, लास्ट ट्रेडिंग डे में कितना परसेंटेज चेंज हुआ था। सो टॉप गेनर्स में वी हैव टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को। So all these are a part of Nifty 50. Then we have this Welspun Corporation and this APL Apollo Tires, I believe. Okay, and इसमें से आप देखो कि टाटा स्टील में this has given the highest return in last one day. So 3.59% ऊपर था ये टाटा स्टील का स्टॉक। ओके, राइट, सो लेट्स सी कि इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। ओके, सो वन बाय वन आई विल गिव माय एनालिसिस ऑफ ऑल दीज स्टॉक्स। एंड इसके अलावा भी these are some of the other stocks which are a part of this metal sector, तो ये भी आप analyze कर सकते हो। okay, but in this video I am going to analyze these stocks which have been the top gainers in the last trading session। okay, so first is Tata Steel and I believe अगर आपको किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, so this is the best। and एक न्यूज़ भी है टाटा के शेयर्स में। so basically टाटा सन्स जो ग्रुप है, टाटा सन्स का IPO आने वाला है and आई एम नॉट श्योर व्हेन दैट IPO will come, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। बट वो IPO जब से अनाउंस हुआ है, तब से टाटा के जितने भी शेयर्स हैं टाटा ग्रुप के, उनमें एक अपसाइड देखने को मिला है, एक रैली देखने को मिली है। एंड टाटा स्टील वाज आल्सो अप बाय 3.5% इन द लास्ट ट्रेडिंग डे। ओके, तो इसका अगर हम अगेन वी विल गो विद द सेम अप्रोच, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, राइट। सो वी हैव टू गो फ्रॉम मंथली टू वीकली टू डेली टाइम फ्रेम। ओके, so this is the way you need to analyze when you are doing the technical analysis। okay, तो मंथली पे आप देखो कि एक ब्रेकआउट है, एक छोटा सा कप बोल सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी गुड कप, बिकॉज कप में क्या होता है कि लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप, स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट। तो नॉर्मली जो कप होता है वो 7-8 साल का कप होता है, एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो उसको हम कप ब्रेकआउट बोलते हैं। बट यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट इस लेवल के बाद देखने को मिला है। सो दिस वॉज द लेवल 153 in 2021, और अभी अराउंड दिस वाज अक्टूबर आई बिलीव, राइट। एंड अभी 24 मार्च में इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर। सो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग इज अबव दिस लेवल। तो आप बोल सकते हो कि 2.5 साल का ये ब्रेकआउट है। ओके, विच इज डिसेंट। एंड RSI इज ऑल्सो अबव 60। सो RSI ने भी यहाँ 60 को क्रॉस किया, यू सी। एंड इसका जो स्लोप है RSI का, दैट इज ऑल्सो अपवर्ड्स, विच इंडिकेट्स की मोमेंटम है इस स्टॉक में। ओके, सो ये है मंथली टाइम फ्रेम। देन इफ वी गो टू द वीकली, राइट, वीकली पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन आपको ब्रेकआउट वही दिखेगा आफ्टर 2021। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल रहा है। and RSI is also above 60। so weekly time frame पे भी RSI, see the momentum and see the slope। normally क्या होता है कि कई बार RSI 60 के ऊपर होता है, बट उसमें
थोड़ा सा फ्लैटिश होता है। ओके, अगर ये ऐसे है डायरेक्ट पैरेलल टू दिस लेवल तो वो थोड़ा सा फ्लैट है, बट इसमें अभी इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड्स है, which indicates that there is a strong momentum. Okay, so weekly पे भी it is looking good, and if we see the shorter time frame, daily time frame, तो डेली पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है, आप देख सकते हो ये 20 EMA, 50, 100 एंड 200। तो दिस प्राइस इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, मतलब रिसेंटली इसमें एक तेजी देखने को मिल रही है। ओके, एंड सी द वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, सी द हाई वॉल्यूम। इसके पहले छोटे रेड बार्स आपको दिखेंगे, मतलब थोड़ा यहाँ पे सेलिंग थी, बट दिस बार इज कंपेरेटिवली लोअर, एंड इसके पहले भी अगेन यू सी दिस हाई ग्रीन वॉल्यूम। ओके, सो दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इन दिस स्टॉक, एंड यहाँ पे भी RSI इज अबव 60 एंड it has the upward slope. Okay, so Tata Steel is one stock which is looking good, and चार्ट पे तो ये अच्छा दिख ही रहा है। एंड there is one more factor which I told कि there has been an uptrend in all the Tata shares, okay, because of that announcement of Tata Sons IPO, तो उसका भी फायदा इसको मिल सकता है डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट इज JSW Steel। सो JSW Steel भी देख लेते हैं। राइट, JSW Steel अभी थोड़ा सा इट इज लुकिंग फ्लैटिश। ओके, RSI भी आप देखो तो ये 60 के पास है, बट 60 को इसने क्रॉस नहीं किया है, सो RSI इज अबाउट 59। तो JSW Steel अभी कुछ खास नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू टाटा स्टील। सो अगर मुझे किसी एक स्टॉक में पोजीशन बनानी है इन द मेटल सेक्टर, सो दैट विल बी टाटा स्टील। ओके, एंड वीकली पे भी अगर हम देखें, राइट, सो वीकली पे भी उसी वहां पे हमें RSI एक तो अबव 60 था टाटा स्टील में, एंड उसका स्लोप जो था वो अपवर्ड्स था। राइट, यहाँ पे RSI इज बिलो 60, एंड जो इसका स्लोप आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इंडिकेट्स दैट JSW स्टील में अभी कोई ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, और ये क्लियर अपट्रेंड भी नहीं है। सो दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है, इफ आई पुट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, और अभी अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस लेवल विच वाज प्रीवियसली द रेजिस्टेंस। तो ये एक ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज चल रहा है अभी, आई बिलीव। एंड डेली पे भी अगर हम देखें, सो सेम कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे RSI इज ऑल्सो 40-60 के बीच में, कोई यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। इफ यू सी दिस, तो ये साइडवेज बोल सकते हैं इसको, दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड, और RSI भी देख सकते हैं कि इट इज बिटवीन 40-60, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस। टाटा स्टील का हमने देखा था तो द वॉल्यूम वॉज ऑल्सो हाई। यहाँ पे आप वॉल्यूम चेक भी कर सकते हो कि दिस लेवल इज अराउंड 4.77 मिलियन, 5 मिलियन वॉल्यूम्स की, सॉरी 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग हुई है यहाँ पे। एंड इफ आई गो एंड चेक टाटा स्टील, सो आई बिलीव उसमें काफ़ी हाई वॉल्यूम था। अगेन आई विल गो टू द डेली चार्ट एंड यू सी 124 मिलियन। राइट, ऑफ कोर्स टाटा स्टील का जो वेटेज है दैट इज ऑल्सो मोर, बट स्टिल दिस वॉल्यूम इज कंपेरेटिवली हाई एज कम्पेयर टू JSW स्टील, मतलब टाटा स्टील में ज़्यादा मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू RSI, एंड ज़्यादा बाइंग भी टाटा स्टील में हो रही है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। ओके, सो JSW स्टील आई वुड अवॉइड। Then let's see the next one, Hindalco. So ऐसा नहीं है कि JSW Steel नहीं चलेगा। Okay, it might be also possible that JSW Steel can outperform Tata Steel in the coming few months. But अभी current chart देख के ऐसा लग रहा है कि Tata Steel would be a better pick. Again, this is a probability only, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि Tata Steel ना चले, JSW Steel चले, but वैसा जब chart में reflect होगा, then we will decide accordingly. Okay. But at this point of time, when I am recording this video on 9th March, Tata Steel की probability ज़्यादा है to outperform as compared to other stocks in the metal sector. Okay, so this thing is very important to note, and you have to keep analyzing this. अगर ये वीडियो आप एक महीने बाद देख रहे हो
तो दिस एनालिसिस माइट नॉट होल्ड रेलेवेंट. ओके, बट यू कैन लर्न हाउ टू एनालाइज द स्टॉक्स. ओके, कैसे आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, और सेक्टर आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया तो उसमें कैसे आपको स्टॉक्स चुनने हैं. ओके, so that is the main purpose of making these videos. And next we have Hindalco. So I think I've opened this Hindalco already. Hindalco Industries. Okay, and let's again go with the same approach. So first I will open the monthly time frame. Okay, राइट. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि RSI 40-60 के बीच में मतलब साइडवेज है. और यहाँ पे ओके, इफ आई गो हियर, सो यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखेगी, दिस वन. सो दिस इज अ शूटिंग स्टार. तो शूटिंग स्टार क्या होता है बेसिकली कि एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में अगर आपको ऐसा कोई कैंडल दिखती है, ओके, विच हैज अ स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग अपर विक, सो दिस इज अ शूटिंग स्टार. और अगर एक अप ट्रेंड में ये शूटिंग स्टार दिखता है तो दिस इंडिकेट्स रिवर्सल, कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या स्टॉक रिवर्स हो सकता है. तो देखिए इस शूटिंग स्टार के बाद सेम ऐसा ही हुआ, 3 रेड कैंडल्स बनी, और ये इस प्राइस से 630 से यहाँ पे आ गया 304 पे. ओके, सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ सम ऑफ द बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स. एंड अगर आपको इसको सीखना है तो maybe there is a book which you can read. So it is Japanese Candlesticks by Steve Nisson. This is a very famous book and one of the best selling books to learn about candlestick patterns. So वो आप refer कर सकते हो, and maybe I will also make one video on candlestick patterns. Okay, but this is a shooting star. तो यहाँ से एक रिवर्सल आया, एंड ये एक रेजिस्टेंस होगा अभी. तो सी, ये रेजिस्टेंस इसने क्रॉस नहीं किया, एंड अगेन नीचे आ गया, एंड यहाँ पे आपको रेड वॉल्यूम दिख रहा है, एंड सी दिस टू रेड कैंडल्स ऑल्सो. तो अगेन हिंडाल्को ऑल्सो आई एम गोइंग टू अवॉइड. ओके, एंड सेम अगर आप वीकली पे भी देखो, राइट, तो वीकली पे भी देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल. RSI 40-60 के बीच में मतलब साइडवेज है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो इसमें भी यू नीड टू वेट. ओके, इफ आई पुट दिस लाइन, राइट, तो दिस इज द रेजिस्टेंस. अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो इसमें हिंडाल्को में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी, राइट. एंड डेली पे भी उसी 40-60 के बीच में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, सी दिस गैप डाउन. तो दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की, एंड आई वुड सजेस्ट यू हैव टू अवॉइड दिस एज ऑफ नाउ. तो अभी तक ये 3 स्टॉक्स की हमने बात की, टाटा स्टील, JSW स्टील एंड हिंडाल्को, जो निफ्टी 50 में भी आते हैं. सो निफ्टी 50 में लिस्टेड है ये. एंड इसके बाद एक और है वेलकॉर्प. ओके, एंड वेलकॉर्प भी आई बिलीव इज अ गुड स्टॉक. सो वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया. ओके, एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखेगा, राइट. सो दिस इज एक्चुअली अ कप पैटर्न, और यहाँ पे कप ब्रेकआउट है क्लियर. सो इफ आई पुट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, अब इसको आप समझो थोड़ा. दिस इज अ कप. ओके, ये लेवल इसने टच किया था. व्हाट वाज दिस प्राइस? 533 2008 में, और ये ब्रेकआउट कब हुआ? 2023 में. मतलब दिस इज द एक्चुअल कप, 15 साल का कप, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया. तो अभी ये लेवल क्या था? रेजिस्टेंस था. ओके, एंड इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे आ गया. तो अगर ये इसके नीचे आ गया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता. ओके, समटाइम्स क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है बट फिर ये इस लेवल को तोड़ देता है, तो दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट. बट यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे गया, इसने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, इफ यू सी दिस रेड कैंडल. बट अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है दैट इज अ ग्रीन कैंडल, और वो इसकी जो क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग, दैट इज अबव दिस लेवल. तो ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल था और जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नाउ इट कैन एक्ट एज सपोर्ट. तो इस रेड कैंडल के बाद ऐसा भी हो सकता था कि फिर एक रेड कैंडल बनती इसके नीचे, तो हम बोलते कि ये ब्रेकआउट लेवल जो है इसने तोड़ दिया है. ओके, डिसाइसिवली. बट अभी ऐसा नहीं है. एक ग्रीन कैंडल बनी है इसके बाद, एंड इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग इट इज वेल अबव दिस लेवल. तो जब तक ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है तब तक दिस ब्रेकआउट विल होल्ड ट्रू. तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट. और जैसा कि अभी ओवरऑल मेटल सेक्टर को देख के लग रहा है कि इसमें भी ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, एंड माइट भी ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट उसके बाद इट इज गोइंग टू गो अप.
तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है एंड यू नीड टू हैव अ लुक एट दिस स्टॉक। सो इसको आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, एंड जब भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिले आई बिलीव दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड सेम वीकली में आप देख सकते हो थोड़ा सा भी 60 के नीचे है, सो दैट इज अ कंसर्न, बट आई बिलीव इट कैन गेन मोमेंटम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और वीकली में हम एक चीज और देखेंगे कि इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। सो दिस मूविंग एवरेज जो जितनी भी मूविंग एवरेज की लाइन्स है यहाँ पे 20, 50, 100, 200, तो ये जो जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं ऑल दीज आर क्रूशियल सपोर्ट। 200 EM में जो है सबसे क्रूशियल होता है, बट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस 20 EM में। एंड वही चीज अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो इट इज टेकिंग दिस सपोर्ट ऑन दिस विच इज दिस वन 100 EM। सो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है इन लेवल्स पे। ओके, एंड जनरली क्या होता है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो और वीकली में अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया तो मंथली में भी वो उस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पे आएगा। जैसे वीकली में यू सी यहाँ पे सपोर्ट है, ओके 20 EM में, तो अगर इसने 20 EM को ब्रेक किया तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हायर टाइम फ्रेम है दैट इज मंथली टाइम फ्रेम, वहां पे भी वो उस पर्टिकुलर 20 EM पे आए। ओके, बट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। ओके, एंड सिमिलरली दिस विल होल्ड फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स। जैसे अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अभी ये किस लेवल पे है, इट इज एट 100 EM में सपोर्ट। तो अगर ये प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे 100 EM को ब्रेक करता है तो दैट मीन्स कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये हायर टाइम फ्रेम, इसका हायर टाइम फ्रेम क्या हुआ वीकली, तो वीकली पे भी ये 100 EM तक आएगा। ओके, सो दैट इज वन गोल्डन नगेट विच आई एम गिविंग यू, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। एंड डेली पे हम देख सकते हैं कि 40-60 के बीच में है, तो अभी मोमेंटम नहीं है। सीइंग द आरएसआई मोमेंटम अभी इसमें नहीं है, बट एक अच्छी चीज ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है मतलब ये इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर जाता है इन नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल्स, दैट मीन्स कि दिस विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है। ओके, नाउ क्विकली कमिंग टू द लास्ट स्टॉक दैट इज APL अपोलो, उसको भी देख लेते हैं। Okay, so I believe this is the one. So the current market price is 1578, yeah. So this is the stock. Again इसको आप मंथली में देखो तो 60 के ऊपर है। ओके, so, मतलब मोमेंटम है उसमें। एंड यहाँ पे आप वीकली में जाओ तो वीकली में भी यू कैन सी कि थोड़ा सा ये डाउन आया था, उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। ओके, बट ये RSI 40-60 के बीच में मतलब अभी साइडवेज है। सो अगेन नथिंग स्पेशल। एंड डेली पे हमें एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक रैली यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज RSI ने 60 को क्रॉस किया, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो कि अभी प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था। ओके, एंड इसके बाद इसने 1 by 1 जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उनको क्रॉस किया, एंड यू सी दिस इज अ गुड ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल से इसने सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया, और उसके बाद यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्रीन कैंडल इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक सिग्नल दे रहा है कि एक रैली इसमें आ सकती है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक आई बिलीव फ्रॉम द मेटल सेक्टर, APL अपोलो ट्यूब्स। ओके, सो ओवरऑल हमने देखा कि मेटल सेक्टर है विच इज गिविंग अ गुड साइन, एंड इसमें भी आप ये सारे स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो। यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम दिस वेबसाइट। सो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यहाँ से आप ये देख सकते हो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। ओके, so all this you can check. So in my view Tata Steel is the one which I believe is looking the strongest right now. Okay, so that was all from this video. I hope आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, and if you have liked the video then do like, share, comment and subscribe to my channel Wealth Wizards. Okay, so I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.